Hello students, this side Dr. Praveen Kumar Arora and it's my lecture number 2 on IUPAC nomenclature of organic compounds. See, here we would be discussing about naming the alkyl groups. That part of the molecule which have not been included in the principal carbon chain would be taken as substituents. ये मैं अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ कि IUPAC नेमिंग में हम सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है वो सेलेक्ट करते हैं. अब प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो मॉलिक्यूल का जो पार्ट इंक्लूड नहीं हुआ है it would be taken as substituent, right? So the alkyl groups which are not in the principal chain, how would we name that? Clear? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि the carbon of the alkyl group which is directly attached to the principal carbon chain PCC. तो अभी आगे के लेक्चर्स में मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन को PCC करके ही आपको बताऊंगा, राइट? तो the carbon which is immediately attached, which is directly attached to the principal carbon chain would be stated as open valent carbon, right? So it is open valent carbon. तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने सभी ओपन वैलेंट कार्बन को येलो बॉक्स में रखा हुआ है, राइट? सो हियर this alkyl group as a substituent would be named as methyl, right? Now here the alkyl group is having 2 carbon and there is no unsaturation, so it would be named as ethyl. Here that alkyl substituent is having 3 carbon, so it would be named as propyl or normal propyl, right? Now here the open valent carbon, the carbon which is directly attached to the principal carbon chain is branched, right? Clear? तो ये देखिए, ये इस तरीके से ब्रांचिंग है यहाँ पर. सो हेयर इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि ओपन वैलेंट कार्बन जो होता है, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन is always numbered as 1, always numbered as 1. There is no exception to this rule. Open valent carbon वो कार्बन है which is directly attached to the principal carbon chain and it is always numbered 1, right? So what would be the name of this substituent? The name of this substituent would be 1-methyl ethyl. It would be the name of this substituent, right? Now in this case this open valent carbon we would give number 1. As I have already told you, open valent carbon is always numbered 1 without any exception, So the name of this alkyl substituent would be here. It is substituent on the substituent. It is to be noted that it is substituent on the substituent. It is the substituent and this methyl is substituent on the substituent. So this alkyl group would be named as 2-methyl propyl, right? Now here again the substituent is having substituent. So first we would select the principal carbon chain on the substituent also. It is that case. So it is our principal carbon chain for the substituent, right? Clear? So it is always number 1. Right? So it is the substituent on the substituent. It is the substituent on the substituent, right? It is the substituent on the substituent. It is the substituent on the substituent, right?
So how would we name this alkyl group? It would be 1,1 dimethyl propyl. Right, 1,1 dimethyl propyl. Now let's come to another example. Again, the open valent carbon is in yellow box. We would always number open valent carbon as 1. Right. So if I select this as a principal carbon chain, of the substituent, then it would be wrong. 1, 2, 3. So here is the substituent with 3 carbon in the principal carbon chain. It is to be noted, I am talking about the principal carbon chain of the alkyl substituent, right? I am talking about the principal carbon chain of the substituent. So here is the case where there are 3 carbons in the principal carbon chain of the substituent, and it is the substituent on the substituent. But another possibility, we would see the another possibility how we can name this alkyl group. Right. Another possibility is we would select this as a principal carbon chain of the alkyl substituent, right? Always that open valent carbon is always numbered as 1. So 1, 2, 3. In this case, there are 3 carbons plus 1 substituent, right? But in this case there are 3 carbon plus 2 substituent. So it would be the correct way to name this alkyl substituent, and it is wrong. You can see here there are 3 carbon in the principal carbon chain of the alkyl substituent and 1 substituent, right? Substituent on the substituent. In the another case, there are 3 carbon on the alkyl substituent, 3 carbon in green font and 3 carbon in red font. Tie case, we cannot decide, but on the number of substituent we can decide. In the red font, 3 carbon plus 1 substituent. In the green font, 3 carbon, 2 substituent. So it is the correct way to name this alkyl group, right? Now how would we name this alkyl group? It is ethyl, right? And it is methyl. Now we would see when the alphabetical order, whether E comes first or M comes first. Definitely E comes first. So the name of this alkyl group would be 1-ethyl, 2-methyl, 1-ethyl, 2-methyl propyl. So it would be the name of this substituent, right? तो अब आपको जो अपने दिमाग में बिल्कुल पक्का रखना है वो ये रखना है कि एल्काइल ग्रुप जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, एल्काइल ग्रुप का वो कार्बन, दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन वुड बी ऑलवेज अ ओपन वैलेंट कार्बन विदाउट एनी एक्सेप्शन, एंड इट वुड बी ऑलवेज नंबर्ड एज 1, राइट?
ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको इस सब्स्टिट्यूएंट में प्रिंसिपल कार्बन चेन ढूंढना हो, यू नीड टू सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो उसमें वही रूल्स फॉलो होंगे जो मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था आपसे. सो यू रिक्वायर टू सी द लेक्चर 1 आल्सो. जैसे कि इस केस में मैंने आपको बताया कि हमने अपने एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में भी प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट किया है. जो रेड फॉन्ट में सेलेक्ट किया है वो गलत है और जो कि ग्रीन फॉन्ट में सेलेक्ट किया है वो सही है. द रीजन बिहाइंड इज in red font there is one substituent plus 3 carbon in the principal carbon chain. That I am talking about the red font case. In the green font case there are 3 carbon in the principal carbon chain plus 2 substituent. So it wins. And it is the correct way. I hope now there is a concept clarity. Okay. Now another way to write alkyl substituents which is accepted by IUPAC. लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दोनों तरीके का आपको ऑप्शन मिलता है और वहाँ पर जो क्वेश्चन का टाइप है दैट ओनली वन चॉइस इज करेक्ट, तो जो मैंने आपको अभी जस्ट डिस्कस किया है इट इज मोर करेक्ट. राइट, क्लियर. अब इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय अल्काइल बाय IUPAC. तो इसमें देखिए ये कंसेप्ट तो सेम रहेगा दैट द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन वुड बी टर्म्ड एज ओपन वैलेंट कार्बन. राइट. अब यहां पर लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट है. द ओपन वैलेंट कार्बन इज ऑलवेज राइट. यहां पर देखिए आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने जितने भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट विच इज अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन उनको हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखा हुआ है. पर जरूरी थोड़ी ना कि एग्जाम में इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखा हुआ हो. एग्जाम में दे में बी वर्टिकल और दे में बी इन एनी फॉर्म. राइट, क्लियर. आपका कंसेप्ट क्या है? आपका कंसेप्ट है दैट द ओपन वैलेंट कार्बन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज राइट. वहां पर मैं नंबरिंग की बात कर रहा था, यहां पर मैं लेफ्ट राइट की बात कर रहा हूं. राइट, क्लियर. सो द ओपन वैलेंट कार्बन ये क्या होता है? इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन. Second, open valent carbon would be always stated as right carbon. फिर इसके अलावा इन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में जो आपको दूसरा एंड दिख रहा है, जो दूसरा टर्मिनल दिख रहा है, इट वुड बी स्टेटेड एज लेफ्ट. यह देखिए ओपन वैलेंट कार्बन इट इज राइट and it is the carbon at the another end, so it is left. Similarly in the case second, the carbon directly attached to the principal carbon chain, that is open valent carbon, is termed as right. Another terminal carbon, another end carbon of the alkyl substituent, it is termed left. Similarly in the case third, right, open valent carbon, another terminal carbon, left. Right. अब देखिए द एल्काइल ग्रुप विच हैज नो ब्रांचेस एट ऑल. ये देखिए बिल्कुल कहीं कोई ब्रांच नहीं है, कहीं कोई ब्रांच नहीं है. इट इज ऑलवेज टर्म्ड एज नॉर्मल एल्काइल ग्रुप. एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एल्काइल ग्रुप. जो लोग अभी जस्ट 11th में आए हैं उनको एन का मतलब इसलिए बताया है, जो कि 12th में है या जो ड्रॉपर्स हैं दे नो. राइट, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल. There is no branching, it is an alkyl group. अब इस केस में आप देखिए कि जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास 4 कार्बन है. It possesses 4 कार्बन, right? So it would be N-butyl. It is N-butyl. अब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को आप नेमिंग देते हैं, इस वे से देते हैं, तो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट है. राइट कार्बन कौन सा? राइट कार्बन ओपन वैलेंट कार्बन. ओपन वैलेंट कार्बन कौन? ओपन वैलेंट कार्बन वो विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन. यहां तक डन है, ठीक है. अब देखिए लेफ्ट साइड से सेकंड कार्बन पर अगर आपको एक ब्रांचिंग दिखती है, इस सेकंड कार्बन पर आपको एक ब्रांचिंग दिखी है, 1 ब्रांचिंग.
तो ऐसा एल्काइल ग्रुप आइसो कहलाता है। ऐसा एल्काइल ग्रुप आइसो कहलाता है। कौन सा? लेफ्ट से आप चलेंगे, सेकंड कार्बन पर अगर वन ब्रांचिंग दिखी है, सेकंड कार्बन पर लेफ्ट से चलते हुए सेकंड कार्बन पर वन ब्रांचिंग दिखी है, देन दैट एल्काइल ग्रुप इज टर्म्ड एज आइसो। इट इज आइसो एल्काइल ग्रुप। अब देखिए इन टोटल इस एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन हैं? इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। In total there are 6 carbon, so it would be termed as isohexyl. It would be termed as isohexyl. यहां पर मैंने हेक्स वर्ड जो है वो इन टोटल किया है. It is to be noted in total 6 carbon, so it is isohexyl. अब ये बात जो हमने करी लेफ्ट साइड से चलते हुए सेकंड कार्बन पर वन ब्रांचिंग, लेफ्ट साइड से चलते हुए सेकंड कार्बन पर वन ब्रांचिंग आइसो। अब राइट कार्बन की बात करते हैं। राइट कार्बन कौन? राइट कार्बन ओपन वैलेंट कार्बन। ओपन वैलेंट कार्बन कौन? विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन, जो कि आपके स्क्रीन पर येलो में बॉक्स किया हुआ है। राइट, क्लियर? राइट कार्बन पर एक ब्रांचिंग, इस तरीके के एल्काइल ग्रुप को हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। इट इज सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, राइट। अब इन टोटल कार्बन की काउंटिंग करते हैं। इन टोटल कार्बन की काउंटिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6, इन टोटल देयर आर 6 कार्बन इन टोटल, सो इट वुड बी सेकेंडरी हेक्साइल, राइट। इससे पहले जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था, इससे पहले वाली स्क्रीन पर, उस पर नंबरिंग था, इस पर लेफ्ट राइट है। राइट कार्बन ऑलवेज ओपन वैलेंट कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन। लेफ्ट से राइट में कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं, एल्काइल ग्रुप इज नॉर्मल। लेफ्ट से राइट पर, लेफ्ट से चल रहे हैं आप, सेकेंड कार्बन पर आपको एक ब्रांचिंग दिखता है, इट इज आइसो एल्काइल ग्रुप, राइट। ओपन वैलेंट कार्बन पर एक ब्रांचिंग, इट इज सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, क्लियर। और जो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं इस मेथड में, वो इन टोटल करने हैं, इन टोटल, जैसे आइसोहेक्साइल, सेकेंडरी हेक्साइल। आई थिंक द थिंग्स आर डन। एक कंसेप्ट क्लैरिटी हुआ है। जिसको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट पर लिख दीजिएगा, आई वुड क्लियर योर डाउट, राइट। अब देखिए राइट कार्बन कौन सा कार्बन? देखिए, आप हमेशा तो हॉरिजॉन्टली नहीं लिखा होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, इट मे बी वर्टिकल। ये जो आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ये एग्जाम में वर्टिकली भी तो लिखा हुआ हो सकता है, तब लेफ्ट राइट क्या, तब तो अप डाउन होगा। नहीं, हमको अप डाउन वाले कंसेप्ट पे नहीं जाना है, हमको लेफ्ट राइट पे जाना है। हमने ओपन वैलेंट कार्बन को टैग कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि ओपन वैलेंट कार्बन इज ऑलवेज राइट कार्बन, राइट। अपोजिट टर्मिनल पर जो एंड कार्बन होगा वो लेफ्ट कार्बन होगा, राइट। अब यहां पर ओपन वैलेंट कार्बन पर, राइट कार्बन पर दो ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग्स। ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा? ऐसा कार्बन टर्सरी कहलाएगा, सॉरी, ऐसा एल्काइल टर्सरी कहलाएगा, राइट। इन टोटल इस एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन हैं? अगेन 6। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका टर्सरी हेक्साइल, राइट। अब लेफ्ट साइड से, फिफ्थ केस की मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट साइड से सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचिंग। नाउ टू रिमाइंड यू, जब हमने लेफ्ट साइड से सेकंड कार्बन पर एक ब्रांचिंग रखी थी, तो उसको हमने बोला था आइसो, राइट। अब हमने सेकंड कार्बन पर, लेफ्ट साइड से सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचिंग रखी हुई है, यहां पर
there are two branches on the second carbon from left side. Such alkyl groups are known as neo. In total कितने कार्बन हैं? In total 6 कार्बन. So this alkyl group would be named as neohexyl. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो मैं अपने लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूं, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू रिमाइंड दैट रूल ओवर हियर. देखिए, जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट्स को कंपाउंड की नेमिंग में लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को किस तरीके से लिखा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा जाएगा, राइट? लोकेशन वाइज नहीं लिखा जाएगा कि भाई ठीक है, जो सेकंड पर आया उसको मैं पहले लिखूंगा, जो थर्ड लोकेशन पर आया उसको मैं बाद में लिखूंगा. नो, नॉट एट ऑल. सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है. क्लियर? अब यहां पर बात चूंकि सब्स्टिट्यूएंट्स की हो रही है तो ये रूल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं. सेकेंडरी, टर्सरी, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये प्रीफिक्सेस जो हैं वो कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के डिसीजन में इंक्लूड नहीं होते हैं. लेकिन आइसो और नियो ये प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के डिसीजन में इंक्लूड होते हैं. क्लियर? सेकेंडरी, टर्सरी, डाई, ट्राई, टेट्रा दिमाग में सेट कर लीजिए. दे आर नॉट इंक्लूडेड in alphabetical decision. Not included. But iso and neo, they are included in alphabetical decision. Included in alphabetical decision. Clear? Right? अब कुछ हम चीजें रिवाइज कर लेते हैं, राइट? जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसको हम रिवाइज कर लेते हैं. तो देखिए, यहां पर इस एल्काइल ग्रुप पे मैंने सबसे पहले तो कौन लेफ्ट है कौन राइट है डिसाइड कर लिया. राइट कार्बन हमेशा वो रहेगा विच इज ओपन वैलेंट कार्बन. ओपन वैलेंट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन. कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है? यस, कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं है. तो ये कैसा हुआ? ये हुआ नॉर्मल एल्काइल ग्रुप. कितने कार्बन हैं इन टोटल? 5 कार्बन. सो इट इज नॉर्मल पेंटाइल, राइट? अब देखिए यहां पर लेफ्ट से मैं सेकंड की तरफ चला तो मुझे एक ब्रांचिंग दिखी. तो ये क्या हो गया? ये हो गया आइसो. इट इज आइसो. अब आइसो कौन सा? कितने कार्बन है इन टोटल? इन टोटल देयर आर 5 कार्बन. सो ये इट वुड बी आइसो पेंटाइल. क्लियर? अब राइट कार्बन पर एक ब्रांचिंग, राइट कार्बन पर एक ब्रांचिंग. तो ये कैसा एल्काइल ग्रुप हो गया? ये हुआ आपका सेकेंडरी. इन टोटल कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन है. 5 कार्बन. सो इट वुड बी सेकेंडरी पेंटाइल. यहां पर अगले केस में देखिए, राइट कार्बन पर 2 ब्रांचेस हैं. देयर आर 2 ब्रांचेस ऑन द राइट कार्बन. विच इज राइट कार्बन? ओपन वैलेंट कार्बन इज right carbon. What is open valent carbon? Open valent carbon is the carbon which is directly attached to the principal carbon chain. तो अब ये क्या हो गया आपका? राइट कार्बन पर 2 ब्रांचिंग. सो इट इज नियो एल्काइल ग्रुप. इन टोटल कितने कार्बन हैं? 5. सो इट इज नियोपेंटाइल, राइट? क्लियर? अब
हम राइट पर दो ब्रांचिंग की बात करी, राइट पर दो ब्रांचेस हैं तो नियो, पर अगर लेफ्ट से सेकंड कार्बन पर हम चलते हैं तो यहां पर देखिए आपको दो ब्रांचेस दिख रही हैं। लेफ्ट से चलते हुए सेकंड कार्बन पर अगर दो ब्रांचेस दिखें तो ऐसा एल्काइल ग्रुप टर्सरी कहलाता है, टर्सरी। इन टोटल कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन, देयर आर 5 कार्बन, सो इट इज टर्सरी पेंटाइल, राइट। अब देखिए नटशेल में बात क्या है, नटशेल में जो भी यहां पर गेम है वो लेफ्ट और राइट का है। लेफ्ट से कौन सा कार्बन इंपॉर्टेंट है? लेफ्ट से सेकंड कार्बन इंपॉर्टेंट है। सेकंड कार्बन पर अगर 1 ब्रांच है देन इट इज आइसो। सेकंड कार्बन पर अगर 2 ब्रांचेस हैं देन इट इज टर्सरी, राइट। अब आ जाते हैं हम राइट कार्बन पर। राइट कार्बन कौन? राइट कार्बन ओपन वैलेंट कार्बन। ओपन वैलेंट कार्बन कौन? विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब अगर ओपन वैलेंट कार्बन पर एक ब्रांचिंग है देन इट इज नॉन एज सेकेंडरी। यही अगर ओपन वैलेंट कार्बन पर 2 ब्रांचेस हैं देन इट इज नॉन एज नीओ, राइट। क्लियर? आई होप कि एक कंसेप्ट क्लैरिटी रहा होगा आपके, एक कंसेप्ट क्लियर होंगे हाउ टू नेम द एल्काइल ग्रुप्स विच आर सब्स्टिट्यूएंट्स, मीन्स विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन, राइट। एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग के मैंने आपको एक तो नंबरिंग वाला वे है और एक लेफ्ट राइट वाला वे है, ये दोनों डिस्कस किए हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इफ यू फील दैट माय वीडियोस आर कंट्रीब्यूटरी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, हैव ए नाइस टाइम, थैंक्स।